So this, oh, okay, all right. So vector differential operator is denoted by this symbol del. Okay, it is also called nebula. Okay, the symbol was originally named as nebula after a shape of an ancient instrument, musical instrument of similar shape. Okay, but usually we call it a del operator. So it is called operator del, and it is introduced by William Gibbs, and it is defined by this operator delta is del over del x I, or let me write down I on this side, I del over del x plus j del over del by plus k del over del z. Now you know it is an operator. So operator का meaning कब है? When it operates on something. So if it is written here like this, then it cannot do anything. Okay, it is an operator but it cannot do anything. Okay, ये जानता है मगर कर कुछ नहीं सकता. Okay, then if you, हाँ हाँ नहीं, इस वाले सिंबल को इसी से ही डिनोट करते हैं, इसको डी से नहीं डिनोट करते. ओके, सो दिस, इसका भी और बहुत सारे यूजेस आएंगे, यू विल सी टू इट. ओके, सो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा, del operator, which is equal to I del over del x plus j del over del y plus k del over del z, and one can see from here that I, j, k are appearing. So this means this is a vector. So I have here vector sign. So I have put arrow over this delta. Okay, and अब जब सिर्फ ऐसे ही लिखा है, then it has no meaning. Yeah, it has no meaning. I mean it cannot do anything. It will sit quietly, but it cannot do anything. But if you write in front of this some function, then it operates on that function. Okay, so if you put, for example, in front of it phi, where phi is a scalar, okay, then it operates on phi, and then you can write it like this. So, and this function, if you substitute phi in front of this operator, then this is known as the gradient of a scalar field. If phi is a scalar field which is defined and differentiable at each point x, y, z in some region of space, or you can say if phi defines a differentiable scalar function, then the gradient of phi you can write del phi or grad phi. Okay, and it is defined as grad phi equal to I del over del x plus j del over del y plus k del over del z. Now you write in front of this phi, then this is equal to I del phi over del x plus j del phi over del y plus k del phi over del z. So you can see from here, if phi is a scalar function, okay, if phi is a scalar function, or if phi is a differentiable scalar function, then this gradient phi, this is also called gradient phi, this one is also called gradient phi, or this is also called in short grad phi. Okay, so grad phi, you can see from here that it is I del phi over del x plus j del phi over del y plus k del phi over del z. Then you can you have seen that here I, j and k, they are appearing, so this means this is a vector. So gradient of a scalar
फील्ड इज ए वेक्टर फील्ड. इसमें फील्ड भी हम क्यों बोलते रहते हैं, दिस आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. ओके, बट फर्स्ट लेट अस सी कि ये किस तरह से वर्क करता है. सो लेट अस see some examples. So for example, if phi x by z, this is equal to 3x square by minus by cube z square, then let us find gradient of phi or grade phi. Okay, at the point 1 minus 2 minus 1. Okay, now we know definition of gradient phi. So ये क्या आ जाएगा, gradient phi we know. So gradient phi, अच्छा केवल इसके ऊपर वेक्टर है, फाई इज ए स्केलर फील्ड और स्केलर फंक्शन, सो फाई के ऊपर नहीं है ये. एंड दिस इज आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल बाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड. एंड अब फाई की वैल्यू रख दो यहाँ पर. फाई यहाँ पर आई जे के नहीं अपीयर हो रहा, यू कैन सी फ्रॉम हियर. And this is 3x square by minus by cube z square. Okay, मैंने यहाँ phi रख दिया. Now this means this is equal to, now this operates on this thing. Okay, so I del over del x then operates on this thing, then plus j comes as it is, then del over del y and then this thing, plus k del over del z and then this thing. Okay, so we can do it directly, I del over del x और फिर ये जो भी कुछ फंक्शन है प्लस जे del over del y, फिर अगेन दिस फंक्शन प्लस के del over del z. Now you can see from here it is a partial differentiation, so just differentiate it. तो ये क्या आ गया, this is a partial differentiation del over del x. So this is I. Okay, और ये क्या आ गया आपका, you are differentiating it with respect to x. So this is 6x by, okay, here there is no x, plus j, and now differentiate it with respect to by. So by के with respect differentiate करेंगे तो क्या आ गया ये 3x square minus 3y square z square plus k, okay, and with respect to z, so this is z, so minus 2 by cube z. Is that right? Okay, now हमें दिया क्या हुआ है, at the point x equal to 1, y equal to minus 2 and z equal to minus 1. So at the point x equal to 1, y equal to minus 2 and z equal to minus 1. Okay, so just substitute values, and by substituting values you get this thing. अच्छा, यहाँ पर एक बात बहुत याद रखने की है, कई बार एग्जाम्स में क्या होता है कि बच्चे ग्रेडियंट फाई कैलकुलेट करने के लिए आया, ग्रेडियंट फाई कैलकुलेट कर दिया, लेकिन वो सोचते हैं कि ये तो स्केलर है, ये तो कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सो आइदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहीं पर भी मैं रख सकता हूँ इसको. मगर यहाँ ऐसा नहीं है, बिकॉज इट्स ए ऑपरेटर. अगर आपने यहाँ पीछे रख दिया इसके, सपोज यहाँ पर रख दिया आपने इसको फंक्शन को, सपोज यहाँ पर इस प्लेस पे सब्स्टिट्यूट किया, देन इट हैज नो मीनिंग, इट इज अनडिफाइंड. ओके, सो जब भी आपका कोई भी फंक्शन है उसके आगे लिखना है, हमेशा राइट हैंड साइड में लिखना है. ओके, हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू जेड कर रहे हैं ना हम, तो विथ रेस्पेक्ट टू जेड, यहाँ जेड कहाँ है,
नहीं, ये तो जीरो हो जाएगा ना, जब कांस्टेंट को तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो तो जीरो हो जाएगा। ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो यू कैन कॉल इट बाई एनी नेम, सब फॉर एग्जांपल ए, तो ए का अगर आप डिफरेंशिएशन लोगे के तो वो जीरो आ जाएगा, इसलिए वो नहीं आ रहा। ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल, find gradient phi if phi equal to log r. okay, so from here you can see कि मैंने यहाँ पर log r लिख के ये ऊपर लगा दिया है, बट यहाँ पर बुक्स में जब भी कभी भी केवल r लिखा हुआ है अगर, तो दिस मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ r. okay, अगर बोल्ड फेस में बुक में वेक्टर को दो तरह से डिनोट करते हैं, या तो बोल्ड फेस में डिनोट किया होता है या वेक्टर लगाया होता है, तो या मेरे ख्याल से ये जो बुक है आपकी इसमें बोल्ड फेस में लिखे हुए हैं, तो बोल्ड फेस में लिखा हुआ है दिस मीन्स इट्स ए वेक्टर, अदरवाइज जैसे आर लिखा हुआ है दिस मीन्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर. ओके, सो पर मैंने यहाँ पर क्लैरिटी के लिए इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया है. नाउ व्हाट इज आर? आर ऑल ऑफ यू नो. ओके, व्हाट इज आर? पोजिशन वेक्टर. सो आर को हम लिख सकते हैं, सो जस्ट राइट डाउन. सो आर इक्वल टू एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के. ओके, then you know what is modulus r. You can calculate modulus of r, and modulus of r is square root of x square plus y square plus z square. right? now phi equal to हमें क्या दिया हुआ है? log r. phi equal to log r. so this is equal to, this means log of whole this thing, x square plus y square plus z square to the power 1/2. okay, and then this thing equal to 1/2 log x square plus y square plus z square. यहाँ तो हमें कोई डाउट नहीं है. so gradient phi is, then write down gradient phi, this is equal to 1/2 then grade phi. so grade phi is log and x square plus y square plus z square. okay, now we know this operator del, so this is 1/2, और यहाँ पर ये क्या आ गया? I del over del x plus j del over del y plus k del over del z. ये तो इस del के लिए आ गया, एंड log हमने एज इट इज लिख दिया. so log of x square plus y square plus z square. okay, अब ये इसके ऊपर ऑपरेट करेगा, फर्स्ट टर्म ऑपरेट करेगी इसके ऊपर, देन सेकेंड टर्म करेगी इसके ऊपर, एंड देन थर्ड टर्म. ओके, सो लेट अस डू इट. तो ये क्या आ गया? 1/2 करो. सो log x का क्या होता है? 1/x. 1/x. सो जस्ट राइट डाउन, 3 टर्म्स आ जाएंगे, उससे लिखते जाओ. तो ये क्या आ गया? i. सो 1/x. x क्या है हमारा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ओके, एंड फिर इसका भी डिफरेंशिएशन. सो यू आर डूइंग ओनली विथ रिस्पेक्ट टू x. सो 2x, वाई एंड जेड जीरो हो जाएंगे. ओके, प्लस जे 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या आएगा अब? 2y प्लस के. सो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू जेड. राइट? सो ये आ गया हमारा. अब 2 हर एक में कॉमन है, सो 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पर ये भी कॉमन है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ दिस. सो जस्ट टेक आउट एंड राइट डाउन होल थिंग. सो मैं इसको लिख देती हूँ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. okay, and xi plus yj plus zk is nothing but vector r, and ये क्या है हमारा?
मॉडुलस ऑफ आर, राइट, ये हमने निकाला था यहाँ पर, ये मॉडुलस ऑफ आर है और ये वेक्टर आर है. सो देयरफॉर यू कैन सब्स्टिट्यूट वेक्टर आर बाय दिस थिंग. So this is how we calculate gradient of a scalar field. Okay. So let us take मॉडुलस आर, ये है ना मॉडुलस, ये है मॉडुलस आर. हाँ रूट हाँ ये स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, आई एम सॉरी. ठीक है. So now let us take this next example. This is find gradient phi if phi equal to 1 by r. So find gradient of phi equal to 1 by r. So let us find out क्या आ गया आपका. Okay, we know gradient phi. So gradient phi equal to gradient phi हमें दिया हुआ है. So gradient phi is 1 by r. हमें 1 by r. अब यहाँ पर अकेला r लिखा हुआ है. मैंने आपको अभी बताया था कि अगर अकेला r लिखा हुआ है, okay, तो this means it is the modulus of r. Okay, so modulus of r हो गया ये, तो ये क्या आ गया, this is delta and ये किस पर ऑपरेट करेगा देन, 1 over square root of 1 over x square plus y square plus z square to the power 1/2 square root of this, right. So this means you can write it as delta. Okay, सॉरी मॉडुलस लिखा नहीं है, मैं आपको यही समझा रही हूँ कि अगर बोल्ड फेस में लिखा है अगर वो लेटर, तो मैं यहाँ पे बोल्ड फेस और इसमें तो अंतर कर नहीं सकती अपना लिखने में, लेकिन यहाँ पर मैं अगर वेक्टर नहीं लगा रही हूँ उसके ऊपर, दिस मीन्स इट्स अ मॉडुलस ऑफ आर. समझ में आया. हाँ, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -1/2 लिख सकते हैं हम इसको. ओके, नाउ जस्ट डू इट. सो करना शुरू करो. तो ये क्या आ गया आपका, ग्रेडियंट फाई दिस इज इक्वल टू, ग्रेडियंट को हमने लिख लिया, दिस डेल ऑपरेटर फर्स्ट, सो आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, एंड फाई हमको दिया हुआ है, जो फाई हमने यहाँ पर लिखा है वो हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -1/2. ओके, सो नाउ जस्ट ऑपरेट दीज थिंग्स. सो आई तो एज इट इज आ जाएगा, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, डेल ओवर डेल एक्स, इसका करना है हमें. तो ये क्या है आपका -1/2, then x square plus y square plus z square to the power -3/2 times 2x. Is that all right? Yeah. Similarly do it for the other terms. So similarly do it for the other terms for j and k. Okay. So लिखो उसको j and k. Similarly, write down for the terms for j and k. And now look at it here. This is equal to, okay, ये तो 2 तो हर एक में कॉमन आएगा. इसमें 2x आया, उसमें 2y आ जाएगा, इसमें 2z आ जाएगा. सो 2 हर एक में कॉमन आ जाएगा, राइट. एंड ये भी कॉमन है हर एक में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3y2. सो ये भी कॉमन आ जाएगा. सो और यहाँ पर बचेगा क्या, xi माइनस एक्स आई माइनस एक्स जे माइनस एक्स आई माइनस बाई जे माइनस जेड के. सो इट इज इक्वल टू -i x minus j by
माइनस के जेड बाई, यहाँ पर इसको -3/2 है तो इसको नीचे लिख सकती हूँ मैं, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2. Now minus you can take out and then this is equal to xi plus yj plus zk. So this is minus vector r divided by, अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर टू द पावर 3/2. So r square to the power 3/2. So this means this is r cube. So this is r cube. Is it all right? So यहाँ पर ये, now take this next example, maybe you can do it yourself. So delta r to the power n, this is equal to n r to the power n minus 2 times r. Okay, so कैसे करेंगे? Delta r to the power n, so take left hand side. Okay, now delta r to the power n, तो क्या लिखूं अब इसको, डेल्टा r है, r to the power n, मैंने वेक्टर नहीं लगाया यहाँ पे, so this means it is modulus. So this means square root of x square plus y square plus z square and power क्या दी हमें, n. So this means it is equal to delta x square plus y square plus z square to the power n/2. Okay, now just apply definition of delta. So this is equal to I del over del x plus j del over del y plus k del over del z एंड फंक्शन हमें यहाँ पर इसके आगे क्या दिया हुआ है, स्केलर फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n/2. सो एक एक करके इन टर्म्स को करते जाओ. तो फर्स्ट टर्म से क्या आ जाएगा आपका, this first term operates on this, then second term operates on this and then third term operates on this. So from first term this is I and इसका differentiation कर दो, so n/2 x square plus y square plus z square to the power n/2 minus 1 times 2x, is that all right, plus j के भी साथ ऐसे ही करो, तो n स्क्वायर प्लस n/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n/2 minus 1 एंड यहाँ पर आ गया हमारा 2/, so this is 2/. Similarly do it for z, oh sorry, k, third term. So ये आ गया हमारा n/2 minus 1 times 2z, right? सो अगेन जैसे हमने पहले में किया था यहाँ पर भी सेम चीज हो जाएगी. ओके, यहाँ पर हमारा क्या क्या आ रहा है, n/2. सो 2 2 2 तो हर एक से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 हर एक में कैंसिल हो जाएगा, राइट, ये कैंसिल हो जाएगा एंड हमारा ये क्या बचेगा, n, और क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n/2 minus 1 और क्या बचा हमारा, xi plus yj plus zk and this is nothing but r and ये क्या है हमारा, r square. So just write down values, so n को as it is and यहाँ से आ गया आपका r square to the power n/2 minus 1 and ये आ गया आपका वेक्टर r. okay, एंड n/2 minus 1 को हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू n, इसका एलसीएम ले लो और लिख दो. ओके, सो ये क्या आ गया आपका, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो n r to the power
n minus 2 times this vector r. Is this all right? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Now let us first know what is, just a minute. हेलो हेलो, कहाँ से बात कर रहे हैं आप, प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, अभी मैं बात नहीं कर सकती हूँ, थोड़ी देर में बाद में कर लूँगी। थैंक यू। हाँ, so what is a scalar field or what is a vector field? Okay, so let us try to find out what is a scalar field. हम फील्ड कई बार बोलते रहते हैं, कई बार हम स्केलर फंक्शन भी बोल देते हैं, कई बार फील्ड भी बोल देते हैं, तो इसको बार बार ऐसे बोलते रहते हैं, तो कई बार ये समझ में नहीं आता व्हाट इज स्केलर फील्ड और व्हाट इज स्केलर फंक्शन। ये फील्ड है कि फंक्शन है, क्या है? दे आर ऑलमोस्ट सेम थिंग। ओके, सो व्हाट इज स्केलर फील्ड? फॉर इफ टू ईच पॉइंट, let us say x by z in of a region in space, if you made to correspond a number fx by z, then we say that f is a scalar field. So basically what is a scalar field? The scalar field is simply a scalar valued function of three variables. So यहाँ पर जो region है, this is a scalar field and the function f को हम क्या बोलते हैं? scalar point function. और इसके अप्रोक्सीमेट एग्जाम्पल्स क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कंसिडर द टेम्परेचर एट ईच पॉइंट इन एन इंसुलेटेड बॉल। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया? टेम्परेचर एट ईच पॉइंट, सो ईच पॉइंट, दिस इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, एंड इंसुलेटेड बॉल क्या हो गया आपका? स्केलर फील्ड। ओके, और for example, if you consider water pressure at each point in the ocean, then यहाँ पर water pressure at each point ये क्या हो गया आपका? scalar point function, and ocean क्या हो गया आपका? scalar field. So these scalar fields, they are the approximate idealization of a complicated physical situation. Okay, because they take no account of other properties of matter. Okay, so the scalar field is nothing but it is a scalar valued function of three variables. So now in maths, for fixing the idea, हम क्या करते हैं? हम एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी राइट डाउन, जैसे मैंने पहले भी लिखे हैं वैसे तो, जैसे मैंने लिखा था फाई, तो फाई को मैंने लिखा था फाई एक्स बाई जेड, फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स बाई जेड. Now if you define this function phi x by z equal to something, okay, let us say x by square z plus z square x, okay, then to each point you can give value to each point, and then to each point there is a function corresponding to it. Okay, फाई की में कोई भी वैल्यू है, जैसे आपने पहले भी कोई एग्जांपल देखा था, अगर फाई इक्वल टू विच इज फाई इज ए फंक्शन ऑफ लेट अस से एक्स बाई जेड, एंड मैं इसको भी डिफाइन कर देती हूँ. इफ आई राइट डाउन इट एज लेट अस से एक्स प्लस 2y प्लस 3z, ये लिख देती हूँ मैं. तो क्या होगा? टू ईच पॉइंट एक्स बाई जेड यू देर इज ए नंबर, यू कैन करस्पॉन्ड there is corresponding a number. Okay, so this is called scalar field. Okay, so scalar field, let me write down little bit. If to each point
we say that F is a scalar field. Then the region is a scalar field and the function f is a scalar point function. Or in other words, a scalar field is a scalar valued function. A scalar field is simply a scalar valued function of 3 variables. यहाँ पर 3 वेरिएबल्स की बात होती रहती है. ओके, सो बिकॉज यहाँ सारी चीज़ें हम 3 डायमेंशन में कर रहे हैं. ओके, temperature at each point सो ये क्या हो गया आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड दिस इज ए स्केलर फील्ड. तो ये राइट. सिमिलरली in an insulated wall, तो आइडिया फिक्स करने के लिए सिर्फ एग्जांपल्स हैं ये, बट दे आर अप्रोक्सीमेट एग्जांपल्स. Water pressure at each point in the ocean okay. Now for the sake of fixing the idea, let us consider these fields. थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करना. ठीक है. The following scalar fields so let us write down for example f x by z
this is equal to x plus, let us say, 4 by minus 3z. Okay, so you can see that these are the fields which are defined at, and this is a field which is defined at each point in space. Similarly, if you consider, for example, fx by z, this is equal to, let us say, x square plus y square plus z square. Okay, or let us say, if you write fx by z equal to x square by 4 plus y square by 9 plus z square. Okay, or if you write, for example, fx by z, this is equal to, let us say, x square plus y square minus z. So all of these fields are defined at every point in space. इसका मतलब क्या हुआ कि हर, अगर तुम इसकी x by z की वैल्यू दे दो तो ये फील्ड डिफाइंड है हर पॉइंट पर. ओके, सो these are defined at every point. And now suppose if you have a field like this, fx by z, this is equal to 1 over x square plus y square. Okay, तब यहाँ क्या हो रहा है? The field in this example is defined at every point x, y, z except where x square plus y square equal to 0, because 1 by 0 तो infinity हो जाएगा. Okay, so it is defined everywhere except at where x square plus y square equal to 0, means except on the z axis it is not defined. Is it clear to you? It is defined, yeah, the field in this example is defined at each point x, y, z except where x square plus y square equal to 0, because in that case denominator is 0, so 1 by 0 हो जाएगा तो infinity हो जाएगा. So this means it is defined everywhere except on the z axis. X square plus y square equal to 0 है तो z axis पर नहीं defined है. Okay, now if f is a scalar field, so this is defined, this is defined everywhere except where x square plus y square equal to 0. Okay, so when, if f is a scalar field, now if f is a scalar field, then any surface defined by let us say fx by z equal to c, where c is a constant, is called an isotemic surface. Isotemic surface. If f is a scalar field, then if you define fx by z equal to some constant, okay, then this type of surface is known as isotemic surface. And what is this isotemic? Isotemic means equal value. Okay, so Greek वो है, Greek isotime से बना है ये.
So this is means equal value. Isotonic means equal value. Okay. Now in physics, you have read that electric and gravitational field potential. पढ़ा होगा तुमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एटसेट्रा. ओके, सो इफ एफ डिनोट्स फॉर एग्जांपल आइदर इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल, देन इन सरफेसेस को हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. सुना है कि नहीं? सो इफ एफ डिनोट्स आइदर इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फील्ड potential, then such surfaces are called equipotential surfaces. Means equal potential है on these surfaces पर. Okay. Now if for example F denotes temperature, तो इसको क्या बोलते हैं? They are called isothermal surfaces. Isothermal surfaces पढ़ी होंगी आपने. And अगर F pressure denote करता है तब इसे क्या बोलते हैं? Isobaric surfaces. Okay. So in physics, if F denotes either electric or gravitational field potential, such surfaces are called equipotential surfaces. Equipotential surfaces. Okay, and if F denotes temperature, then they are called isothermal. If F denotes pressure, they are called isobaric surfaces. Okay, and it is impossible for distinct, means अलग अलग दो isotonic surfaces, they never intersect. Okay, so it is impossible for distinct isotonic surfaces of the same scalar field to intersect. क्यों नहीं करती? Because only one number fx by z is associated with any one point. एक point से एक ही number associate होता है. ओके, सो अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पे एक ही उस पर दो एफ एसोसिएट हो जाएंगे. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. सो इट इज इम्पॉसिबल फॉर डिस्टिंक्ट आइसोटोमिक सरफेसेस ऑफ द सेम स्केलर फील्ड टू इंटरसेक्ट because only one number fx by z is associated with any one point x y z. Okay, आई थिंक यहाँ पे मैं आज स्टॉप करूँगी. उसका रीज़न ये है कि इसका फिर फिजिकल इंटरप्रिटेशन लंबा है, तो नेक्स्ट टाइम बताएंगे. ओके, अभी फिर से बताती हूँ, रुको पहले मैं ये ले लेती हूँ. अटेंडेंस यहाँ से भी आ जाती है, कल आ गई थी. तो देन जो बच्चे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं.
मैम ग्रुप में ही लगानी है ना अटेंडेंस? ग्रुप में ही लिख देना, उसमें रोल नंबर लिखे होते हैं, पर मैं यहाँ से वो भी अब आ गई थी तो फिर मैंने ये यहाँ पर कर दिया था। जस्ट ए मिनट, मैं इसको कल मैंने किया था इसको रन, फिर मैं आज भूल गई हूँ कैसे करना है इसको। हाँ अब शायद आ जानी चाहिए। सेटिंग्स नहीं, पता नहीं, मैं भूल जाती हूँ इसको बार बार ना। एनीवे तुम लोग तो लिख ही सकते हो, वो तो कुछ नहीं है। ये क्या है? अच्छा ये वाला होगा फिर डिफरेंट। ओके ये होना चाहिए फिर दूसरा। आई डोंट नो, कल तो आ गया था, आज ये आ ही नहीं रहा है। तुमको ही लिखनी पड़ेगी, इसमें नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, कल तो आ गया था। एनीवे सो राइट डाउन योर अटेंडेंस। ओके अब बताओ क्या नहीं समझ में आया, वो फिर से बता देती हूँ, अभी बताती हूँ। हाँ ये देखो, हाँ ये वाला है ना, इफ एफ इज स्केलर फील्ड देन एनी सरफेस, जब एफ कोई भी स्केलर फील्ड है तो किसी भी सरफेस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ओके एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट। सो इस तरह की जो सरफेस होती हैं दे आर कॉल्ड आइसोटेमिक सरफेसेस। आइसोटेमिक सरफेसेस का मतलब है कि ऑन दैट सरफेस इट हैज ए इक्वल वैल्यू एवरीवेयर। ओके जैसे पेज है, कोई कागज है, उस पर कोई भी किसी भी चीज की वैल्यू है तो पूरे पेज पर सेम है। ओके सपोज मैं कोई पेज ले लेती हूँ A4 या कॉपी ले लेती हूँ। ओके कोई भी मैं कॉपी ले लेती हूँ या पेज ले लेती हूँ। ओके तो उस पर यहाँ पर सब जगह उसकी वैल्यू सेम है। okay that is this means isotonic surfaces। okay so if f, अगर f को पर्टिकुलरली तुम इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल बोल देते हो तो उनको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ओके और अगर उसको टेम्परेचर बोलते हो तो वो आइसोथर्मल कहलाती हैं। आइसोथर्मल माने जिनका टेम्परेचर सेम है हर जगह, यहाँ पर भी सेम है टेम्परेचर, यहाँ सेम है, पूरी सरफेस पे सेम है। ओके सो देन दे आर आइसोथर्मल सरफेसेस। एंड इसी तरह से इसको आइसोबारिक सरफेसेस कहते हैं अगर प्रेशर के लिए है वो तो। और अच्छा ये दो सरफेसेस जो हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जो दो सरफेसेस हैं वो हमेशा इस तरह की होंगी, कैसे बताऊं, ये है आपका इस तरह से, इसको पेजेस को देखो, पेज है इसमें अलग अलग, इसको यहाँ से बाइंडिंग नहीं है, सपोज पेज है अलग अलग, तो क्या होगी ये दीज आर कॉल्ड, ये वाली सरफेसेस होंगी। फॉर एग्जांपल ये दोनों दो सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी कहीं पर भी। ओके दे कैन बी पुट वेरी क्लोज टू ईच अदर बट दे नेवर इंटरसेक्ट। दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। यहाँ पर इस सरफेस पर टेम्परेचर, इस सरफेस पर जो भी कुछ ले रहे हो दैट इज सेम एवरीवेयर, फिर नीचे वाली सरफेस पर भी सेम है एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो दे डू नॉट इंटरसेक्ट। लास्ट पॉइंट मैंने बताया था कि टू आइसोटेमिक सरफेसेस दे नेवर इंटरसेक्ट, क्योंकि इंटरसेक्शन पे क्या होगा कि कॉमन पॉइंट आ जाएगा, एक इंटरसेक्शन होगा तो एक कॉमन पॉइंट आ जाएगा।
ओके तो वहां पर क्या होगा कॉमन पॉइंट पर, बिकॉज देयर शुड बी ओनली वन नंबर शुड बी एसोसिएटेड विद वन पॉइंट, ओके बट वहां पर एक से ज्यादा उस पर एसोसिएट हो जाएंगे पॉइंट सर, इसलिए वो नहीं होगा, दो मतलब दो सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करती। तो अभी जब मैं आपको फिजिकल इंटरप्रिटेशन बताऊंगी तो जब फिजिकल इंटरप्रिटेशन बताते हैं तो ऐसे ही लेके करते हैं, हम दो सरफेस कंसीडर करते हैं, दे आर वेरी क्लोज बट दे आर क्लोज इन्फिनिटेसिमल क्लोज बट इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं वो, फिर उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन नेक्स्ट टाइम जब बताऊंगी तब। सो ये तो मैथमेटिकली कैसे करते हैं हम ग्रेडियंट फाई, ये मैंने आज आपको बताया था। हाँ एक्चुअली मैं ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि क्योंकि क्या होता है कि अल्टरनेटिवली कभी मैं फील्ड बोल देती हूँ कभी मैं फंक्शन बोल देती हूँ, ओके तो फील्ड और फंक्शन से बार बार कभी को तुम लोग कंफ्यूज ना करो, इसलिए मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके और ऊपर मैं स्लोली करती हूँ, देखते जाना कौन सा है वहां बता देना। अच्छा ठीक है, फाई ग्रेडियंट वाला शुरू का कि बाद वाला, ये वाला। Those who have no questions please leave। हाँ कल नहीं है मेरी क्लास, अब सैटरडे को है और सैटरडे को ही G3 ग्रुप का प्रैक्टिकल है। ओके नमस्ते। तुम्हारे क्लास में से G3 में है कि बी सेक्शन में से है? तुम्हारी क्लास में कोई है G3 का कि बी सेक्शन में है सारे? अच्छा ठीक है, ओके ओके बाय देन वी मीट ऑन सैटरडे। मीट कलेक्टर
Okay.